Okay, so in this problem, tan of 3 pi by 11 plus 4 times of sine of 2 pi by 11 is equal to k. Then we want to find the value of k. Let's say pi by 11 is equal to alpha. So now we have k is equal to 10 times of 3 alpha plus 4 times of sine 2 alpha, right? So now we can write it as sine of 3 alpha divided by cos of 3 alpha plus 4 times of sine of 2 alpha. Okay, so now take LCM and cross multiply. So this will become cos 3 alpha multiplied by k is equal to sine of 3 alpha plus 4 times of sine 2 alpha into cos of 3 alpha. So if we do, तो अगर हम दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर 3 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर इज इक्वल टू sin square of 3 alpha plus 16 times of sin square 2 alpha cos square 3 alpha plus 2ab. So this is 8 times of sin 2 alpha into sin 3 alpha into cos 3 alpha. ठीक है. So now we have cos square of 3 alpha k square is equal to, now we can write sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2. So we can write here 1 minus cos of 6 alpha divided by 2 plus. Now similarly we have sin square of 2 alpha can be written as 1 minus cos of 4 alpha divided by 2, and cos square of 3 alpha can be replaced by 1 plus cos of 6 alpha by 2. लिख लेते हैं. So now we have 16 multiplied by 1 minus cos 4 alpha divided by 2 multiplied by 1 plus cos 6 alpha divided by 2 plus. Now if we write this 8 as 4 into 2, so this 2 and sin 3 alpha cos 3 alpha will become, these term will become sin of 6 alpha. So what we have, this is 4 times of sin 6 alpha multiplied by sin 2 alpha we can write. Okay, so now we have cos square 3 alpha into k square 1 minus cos 6 alpha by 2 plus, if we cancel this 16 by this 4, so we left with 4. So now we can write this 4 as 4 multiplied by 1 minus cos 4 alpha multiplied by 1 plus cos 6 alpha, and this is, let's break this 4 as 2 into 2. So we have 2 into 2 times of sin 6 alpha into sin 2 alpha. लिख लेते हैं. So now we have 2 multiplied by 2 of sin 6 alpha and sin 2 alpha. ठीक है. So now in the LHS we have cos square 3 alpha multiplied by k square is equal to 1 minus cos of 6 alpha by 2 as it is. Then this is 1 minus cos 4 alpha and 1 plus cos 6 alpha. इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो 4 as it is, this is 1 plus cos 6 alpha minus of cos of 4 alpha and minus of cos 4 alpha multiplied by cos 6 alpha plus 2 into sin 6 alpha into sin 2 alpha. ठीक है. So now we can say that cos square 3 alpha multiplied by k square 1 minus cos 6 alpha by 2 as it is. इस 4 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, so what we are getting, 4 plus 4 times of cos 6 alpha minus 4 times of cos 4 alpha and minus, here we have 2 into 2. Okay, so this is 4 basically. So we can write it as 2 into 2 here. Okay. Now ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4. This is 4 times of cos 6 alpha. Now this is minus of 4 cos alpha and this 4 inside. So this is minus of, इस 4 को हमने लिख दिया 2 into 2 cos 4 alpha
and cos 6 alpha. Now we have 2 multiplied by 2 times of sin 6 alpha and sin 2 alpha. Okay. So now okay. So now अगर हम इन दोनों टर्म को देखें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास में 2 cos a cos b और ये लिखा हुआ है हमारे पास में 2 sin a sin b. तो अगर हम इसको अलग से सॉल्व करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई 2 cos 4 अल्फा इंटू cos 6 अल्फा को 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है हमारे पास में cos of a plus b. So cos of 4 alpha plus 6 alpha is 10 alpha plus cos of a minus b. So 4 alpha minus 6 alpha is 2 alpha. Minus of 2 alpha या 2 alpha दोनों एक ही बात है cos के केस में. And similarly 2 of sin 6 alpha into sin 2 alpha ये होता है हमारे पास में cos of a minus b minus of cos of a plus b. So this is cos of 6 alpha and 2 alpha. So 6 alpha minus 2 alpha is 4 alpha minus cos of a plus b. So that is 8 alpha. ये आ गया हमारे पास में. इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो ये तो हमारे पास में 2 टाइम्स ऑफ दिस है, यहाँ पर -2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से. ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा एक बार लिख लेते हैं. सो नाउ अगेन, ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है बट इट्स ओके. सो 1 माइनस कॉस ऑफ 6 अल्फा बाई 2 प्लस 4 प्लस ये तो एज इट इज है 4 कॉस ऑफ 6 अल्फा माइनस 4 कॉस ऑफ 4 अल्फा. अभी हम इस वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, -2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और तो यह जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ 2 ऑफ कॉस 10 अल्फा माइनस ऑफ 2 ऑफ कॉस 2 अल्फा. सिमिलरली अब हम ये वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं इस वैल्यू से और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस ऑफ 2 ऑफ कॉस 4 अल्फा एंड माइनस ऑफ 2 ऑफ कॉस 8 अल्फा. क्लियर है? तो ये यहाँ से आ गया हमारे पास में 1 माइनस कॉस 6 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज प्लस 4 प्लस. अब अगर हम यहाँ से माइनस ऑफ 2 कॉस 2 अल्फा को पहले लिख लें इस टर्म को, तो यह आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ 2 कॉस 2 अल्फा. ठीक है बात. फिर तो अगर हम यहाँ से देखें तो माइनस ऑफ 4 कॉस अल्फा ये है और प्लस का 2 कॉस 4 अल्फा ये है, तो हमारे पास में बच गया माइनस का 2 कॉस 4 अल्फा. ये टर्म मिलके हो गया माइनस का 2 कॉस 4 अल्फा. फिर ये जो हमारे पास में टर्म लिखा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं. सो माइनस ऑफ 2 कॉस 8 अल्फा, उसके पहले अगर हम यहाँ पे लिख लें माइनस का 2 कॉस 6 अल्फा. अब यहाँ पर हमारे पास में था प्लस का 4 ऑफ कॉस 6 अल्फा और हमने यहाँ पर माइनस का 2 कॉस 6 अल्फा लिख लिया. तो अगर हमने माइनस कर दिया तो यहाँ पर ऐड भी कर लेते हैं, तो हमारे पास में जाएगा 2 कॉस 6 अल्फा. यहाँ पर हमने ऐड कर दिया. तो अभी तक हमने इस टर्म को, ये जो हमारे पास में टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसको अभी हमने अनचेंज रखा है. अभी तक यहाँ पर इसको हमने यूज नहीं किया है, तो इसको हम लास्ट में इवेलुएट कर लेंगे. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में माइनस ऑफ 2 कॉस 8 अल्फा और ये आ गया हमारे पास में माइनस ऑफ 2 कॉस 10 अल्फा. और ये जो टर्म है इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 6 कॉस 6 अल्फा, तो उसको हमने यहाँ पर अलग से लिख लिया. लेट्स से प्लस 6 कॉस 6 अल्फा. इस पूरे में से अगर हम देखें, इस पूरे में से अगर हम -2 कॉमन ले लें तो हमारे पास में जो रिमेनिंग टर्म है उनको एज इट इज छोड़ देते हैं अपन, जिनको अपन हाईलाइट कर रहे हैं. इन टर्म्स को तो हमने एज इट इज छोड़ दिया और बाकी टर्म में से यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया, तो हमारे पास में आ जाएगा cos 2 अल्फा प्लस cos 4 अल्फा प्लस cos 6 अल्फा प्लस ऑफ cos 8 अल्फा प्लस ऑफ cos 10 अल्फा. ठीक है, इस सीरीज का सम हम लिख सकते हैं
माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ एन बीटा बाई 2। यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो एपी में है, एंगल्स आर इन एपी and we have 5 terms. So cos of sine of n beta by 2. So 5 beta by 2. Beta is 2 alpha. Beta is 2 alpha by 2 हो जाएगा. So that is 5 alpha. So this is sine of n beta by 2 divided by sine of beta by 2. So this is sine alpha. And cos of 2 alpha plus n minus 1 is 4 and beta by 2 is alpha. So this is we have. So minus 2 sine of 5 alpha and cos of 6 alpha divided by sin alpha. तो हमने इनिशियली अल्फा किसको बोला था? हमने इनिशियली अल्फा बोला था पाई बाई 11 को। तो पाई बाई 11 अगर अल्फा है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं पाई बाई 11 इक्वल टू अल्फा. दिस implies 11 अल्फा इज इक्वल टू पाई. So 5 alpha plus 6 alpha is equal to pi. So we can say sine of 5 alpha is same as sine of 6 alpha. तो हमारे पास में लिखा हुआ है minus of 2 into sine of 6 alpha into cos of 6 alpha divided by sine alpha. So this can be written as minus times of sine of 12 alpha divided by sine alpha. ठीक है बात. Now this 11 alpha can be written as 12 alpha minus alpha is equal to pi. So 12 of alpha is equal to pi plus alpha. दोनों तरफ साइन लेंगे हम. So we can say sine of 12 alpha is equal to minus of sine alpha from here. तो ये दोनों जो है टर्म्स, ये टर्म्स तो कैंसिल हो गए with a minus sign. एक माइनस पहले से है. So this minus and one more minus will become 1. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 1. ठीक है. अब ये जो टर्म बचे रह गए थे जिनको हमने अभी तक डील नहीं किया था, तो इस पूरे पार्ट का जो वैल्यू है, इस पूरे पार्ट को कैलकुलेट करने के बाद अलोंग विद माइनस साइन हमारे पास क्या आ रहा है 1. सो नाउ वी कैन राइट व्हाट वी लेफ्ट विद. सो 1 माइनस कॉस 6 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 प्लस 6 cos 6 अल्फा प्लस 1. तो कांस्टेंट पार्ट को अगर हम अलग लिखें तो 1/2 प्लस 4 प्लस 1 एंड 6 times of cos 6 alpha minus cos of 6 alpha by 2 we have. ठीक है. So this we have 5 plus 1/2 that is 5.5. So we can write 11/2 plus यहाँ से अगर हम cos of 6 alpha कॉमन ले लें तो हमारे पास में जाएगा cos of 6 alpha. 6 minus 1/2 is 5.5 that is 11/2. So 11/2 common लिया. So what we have 1 plus cos of 6 alpha. So we can write it as 11/2. 1 plus cos of 6 alpha is twice of cos square 3 alpha. So 2 alpha से 2 alpha कैंसिल हो गया और LHS में हमारे पास में था k स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा. तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये cos स्क्वायर 3 अल्फा से ये cos स्क्वायर 3 अल्फा कैंसिल हो गया. सो नाउ वी हैव k स्क्वायर इज इक्वल टू 11. तो वैल्यू k स्क्वायर का आ गया 11 और अगर हमसे k पूछा गया होता तो k का वैल्यू आ जाता हमारे पास में रूट अंडर 11. सो दिस इज अवर आंसर. सो वी कैन से दैट this is equal to root over. So I hope this is clear to all of you.